کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب اپوزیشن میں تھے جو احتساب کا نعرہ وہ اس وقت لگاتے تھے، کیا آج اس نعرے پہ وہ قائم ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، احتساب پی ٹی آئی کی روح ہے۔ اقتدار میں عوام، احتساب سرعام، یہ 24 سال پہلے یہ سلوگن، یہ جو لیٹر ہیڈز پہ ہوتا تھا ان کے پی ٹی آئی کے، وہ میرا ہی دیا ہوا تھا۔ یہ روح ہے۔ اگر یہ روح پی ٹی آئی کے بدن سے نکل جائے گی، مر جائے گا، اس کا جواز ہی ختم ہو جائے گا۔ اور میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن جتنا میں تھوڑا بہت میرا ہے جان پہچان میرا وہ عمران کے ساتھ، میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے گا، کسی قیمت پہ نہیں ہٹے گا۔ ہاں، اپوزیشن اور حکومت یہ مختلف چیزیں ہیں۔ سردیوں میں آپ جو کچھ پہن رہے تھے یا میں پہن رہا تھا، وہ کین بی افورڈ ٹو ویئر دا سیم آج کل برسات کے موسم میں، سانس گھٹ جائے گا ہمارا۔ یہ رولز ہوتے ہیں، یہ موسم ہوتے ہیں، اور پالیٹکس میں پانی کا بیہیویئر ہونا چاہیے، اور آپ کو شعوری طور پہ اس کی عقل ہو نہ ہو، فہم ہو نہ ہو، حالات کا جبر ہوتا ہے۔ سیاست ایک خاص طرح کا انوائرمنٹ ہے، اس میں گورنمنٹ میں آپ کا سلسلہ اور اپوزیشن میں اور، یہ بالکل ایسے ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے واٹر بیہیویئر، پانی کا بیہیویئر کیا ہے؟ بہاؤ، برف بھی پانی ہے، ٹھیک ہے، جی، بھاپ بھی پانی ہے، اور پانی تو پانی ہے ہی۔ اٹ کیپس چینجنگ اٹس شیپس، اور اس کے ساتھ کیریکٹر بھی۔ پانی تو نیم گرم بھی اور بوائلنگ بھی ہو سکتا ہے، برف ٹھنڈی ہوگی، ظاہر ہے۔ تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، بنیادی بات ہے یہ۔ میری کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، میرا کوئی اسسمنٹ نہیں ہے، میں کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا، میں اس طرح کام کرتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو ایک لاجیکل 2+2، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، عمران شاید ہم دونوں سے بہتر جانتا ہے، بیکاز ہی از ہیڈنگ دا پارٹی۔ اسے پتہ ہے کہ یہ روح ہے اس کی پارٹی، یہ نکل گئی، مردہ ہے، پھر اس کو دفنانے میں اب پیپلز پارٹی از آلسو لائک اے ڈیڈ باڈی، جس کو ابھی تک قبر نصیب نہیں ہوئی، اس کا کفن دفن باقی ہے، بٹ پریکٹیکلی یہ وہ جا چکا ہے۔ سو آئی ایم شیور ہی نوز اٹ، اینڈ دی انٹائر پارٹی نوز کہ یہ احتساب تو ہماری روح ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی کمپرومائز نہیں کریں گے حسن صاحب، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں جیسے کہ رانا ثناء اللہ نہیں، صاحب آپ جی نہیں سکتے نا۔ جی نہیں جی، وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں ہی کچھ لوگ ایسے موجود کمپرومائز ہیں۔ کریں گے۔ ایک منٹ آپ تھوڑا مجھے کنفیوز اب کر رہے ہوں۔ جی جی وہ کرے گا نہیں کرے گا، اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ جی، لوگ خودکشی بھی تو کرتے ہیں نا۔ لیٹس پٹ اٹ دس وے، وہ بندہ جانتا ہے بہت اچھی طرح کہ روح ہے پی ٹی آئی، ایک جسم ہے جس کا سر ہے عمران خان، جس کے دست و بازو میں اس کے قریبی جو بھی ہیں، بٹ بیسیکلی روح ہے اس کا احتساب۔ اچھا، اب کرے گا نہیں کرے گا؟ میرا تو خیال ہے نہیں کرے گا، کیونکہ میں تو خودکشی نہیں، میں تو موڈ میں نہیں ہوں، لیکن لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں۔ سو اس کو اس طرح تک تھوڑا فلسافیکلی دیکھیں۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے بیٹا کہ ہم جب یہ ہمارے دھندے میں یہ ہوتا ہے، وہ بڑا بہت ہی کلیریکل سی اپروچ ہوتی ہے، اور بالکل میں تو ہنستا ہوں دوستوں کو، میں کہتا ہوں کہ یار تم لوگ کسائیوں والا کام کرتے ہو، کہ جی یہ ہم نے یہ چاپیں بنا دی ہیں، یہ گردن کا گوشت ہے، یہ فلاں کا گوشت ہے، یہ ایران کا، اس طرح نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا اس کو اور طریقے سے دیکھیں۔ کرے گا نہیں کرے گا یہ سوال نہیں ہے، کرے گا تو کیا ہوگا، نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں پوچھ سکتے ہو یہ خودکشی کرے گا یا نہیں کرے گا، تو میں سادہ جواب دوں گا، اگر کرے گا تو دیٹ ول بی دی اینڈ۔ اور نارملی تو لوگ خودکشی نہیں کرتے، یہ تو 1 in a million ہے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہوں، نہیں ہو سکتا۔
अनजाने में बंदा को गलती कर बैठे और हज़ारवीं मंजिल से नीचे आ गिरे तो वो एक एक्सीडेंट है। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा पीपल्स पार्टी में कि जो कभी पार्टी चारों सूबों की जंजीर कहलाती थी वो अपने सूबे में सुकड़ती और सिमटती जा रही है। तो ये खुदकुशी है जो उन्होंने प्लान करके नहीं की। मेरा आप इसको ज़रा और तरीके से फिलोसॉफिकली देखते हैं जी जी। सो अगर पीटीआई ये काम करेगी तो इसका मतलब है वो बाकायदा इरादा करके रेलवे ट्रैक पे गई है और रेलवे ट्रैक पे लेट के अब रेल के आने का इंतजार कर रही है ताकि गर्दन उधर रह जाए, धाड़ उधर चला जाए। ठीक। सो इफ दे वांट टू डू इट वो कर लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। अच्छा हसन साहब, आपकी इजाजत से एक और सवाल मैं करना चाहूंगी। retreat कोई जो और बात। माफिया हैं, चाहे वो शुगर जी, हो, please, आटा please. हो, जहांगीर तरीन साहब आप देख लें, बाकी सबको देख लें, इनका भी तो जिक्र आता है। फिर ये वही लोग हैं जो हमने देखा खान साहब के आसपास रहे। इस बात का जवाब है उससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। ऐसा होता नहीं। एक पॉलिटिकल आदमी क्या करता है, अब ये इमरान की वो सोच थी वो गलत थी। मैंने उससे कभी एग्री नहीं किया कि जी पाक साफ लोग आए। वोट तो चोर का भी चाहिए आपको, कम तोलने वाले का भी चाहिए, मिलावट करने वाले का भी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने वाले का भी चाहिए। वोट तो आपको राशि का भी चाहिए, कमीशन और किकबैक खाने वाले का भी चाहिए। बंदे इर्द गिर्द आपको फरिश्ते चाहिए। ये क्या बात हुई? हाँ, सुन्नत है जो आए बिस्मिल्लाह आओ। कभी सुना हुजूर ने किसी को, लेकिन फिर उनका किरदार तब्दील किया। यही बात साबित करती है कि कुर्रा अर्ज़ में बनी नौ इंसान की तारीख में कोई उनके टखनों तक भी नहीं पहुंचता। उन्होंने इंसानों की रूहें, सोचें, रवैये वो तब्दील किए। सो आए आहिस्ता आहिस्ता, कुछ शायद बेहतर हो गए हों, कुछ शायद मज़ीद बेहतर हो जाएं, कुछ मुनाफिक होंगे। ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो मुनाफिकीन को उनकी छांटी होती चली गई। असल बात ये है कि अच्छा आपने कहा मैफिया, एक बात है, आप भी हर्ट ना होना और इस पे कोई मायूसी वाली बात भी नहीं है। वी आर अ सोसाइटी ऑफ मैफियाज। आपका रेडी वाला भी एक माफिया है जिसकी दुम पे पांव आए मेरी इस बात पे, वो मेरे घर तशरीफ लाए, तमाशा मैं दिखा दूंगा। एक ही सड़क पे एक ही चीज हर दुकान पे गाहक की हैसियत देख के कीमत बताई जाती है। वी आर अ सोसाइटी ऑफ मैफियाज। दैट इज वाई मैं मुद्दतों से कह रहा हूं कि हमारा प्रॉब्लम इक्तसादियात नहीं है, हमारा प्रॉब्लम बर्बाद हो चुकी अखलाकियात है। आप एक खास दुकान पे कोई खास चीज मंगाने के लिए, फल है या कोई खास आम है, आप खुद ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट टाइम जब कभी हम इकट्ठे होंगे किसी प्रोग्राम में तो मुझे आप बताना, मैं आपकी बात मान लूंगा, भले आप गलत भी कहो तो मैं मान लूंगा। ट्राई करना एक बार। एक दुकान पे आप अंगूर लेने के लिए जो भी कोई चीज है, सेब लेने के लिए, और एक खास कि जी फलाना सेब, साइकिल पे बंदे को भेजो उसको और रेट होगा। ये छोटी गाड़ी जो होती है ऑल्टो मोल्टो टाइप भेजो और होगा। किसी को टोयोटा शियोटा पर भेजो और होगा, लैंड क्रूजर पे भेजो और होगा। अगर नहीं होगा मैं ये पेशा छोड़ दूंगा जी। वी आर अ सोसाइटी ऑफ मैफियाज। इंक्रोचमेंट है मसलन। ये पागल हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, कौन है ये? लेन्स होती हैं एक सड़क पे, ना मैं ऑब्जर्व करता हूं ना आप करते हो। तो ये कि मैफियाज क्या होते हैं? मैफियाज होते हैं जिनका कोई असूल है, जो जिसका दिल करे और जो कर सकता है वो कर गुजरता है। बेसिकली ये है मैफिया। तो इट इज अ सोसाइटी ऑफ मैफियाज। मुंह उठा के ये लोग जब बातें करते हैं ना, इनको लफ्जों की हुर्मत का अंदाजा नहीं होता। अभी 4 दिन पहले असेंबली में तकरीर करते हुए एक अच्छा खासा, मुझे तो वो अच्छा लगता था, उस दिन के बाद से मुझे अजीब सा लगा, बुरा तो अब भी नहीं लगता लेकिन अजीब लगने लग गया। उसने लास्ट
8 to 10 minutes मैंने I heard him, उसने 3 बार इस्लामाबाद के लिए दारुल खिलाफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दारुल खिलाफा का। आपके अक्सर पॉलिटिशियंस ये झक मारते हैं, वो खलीफा तो है ही नहीं दुनिया में कहीं मुसलमानों में। अब दारुल खिलाफा कहाँ से आ गया? दारुल सल्तनत है जहाँ सुल्तान बैठे, ये दारुल हुकूमत है। पढ़ा लिखा आदमी, दारुल खिलाफा, दारुल खिलाफा। अच्छा, वजह क्या है? शऊर नहीं है, लफ्ज़ सुने हुए हैं, जुगाली किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। लफ्ज़ों की एक हुर्मत होती है, उनके मतलब होते हैं, उनके को मानी होते हैं। सो माफिया कौन है जो माफिया नहीं है? पटवारी माफिया नहीं है। बिल्कुल ठीक। लोएस्ट ग्रेड का एक मामूली गवर्नमेंट फंक्शनरी होता है वो। पटवारियों का माफिया इस मुल्क में मैं समझता हूँ शुगर माफिया का भी बाप है। ये बस अच्छा, हसन निसार साहब, जब ऑपोजिशन एहतसाब की बात करती है तो वो कहती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और एक तरफा एहतसाब किया जा रहा है, तो वो फिर इस तरह का गिला क्यों करते हैं? देखें, बात सुने, वो तो और बहुत सारी बंकियां मारते हैं। आप अंदाजा लगाओ, को बात बनती है कि कैसे कैसे इल्जामात हैं। ठीक है, अब मुझे दुख हो रहा है ये बात करते हुए। मैंने जिंदगी में 3 बार जेलें काटी हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से। उस वक्त बच्चे थे, होश नहीं थी, आई वाज वेरी यंग। भुट्टो की फांसी के बाद भी, ठीक है, 86 में बीबी तशरीफ लाई हैं तो जंजीर के नाम से एक मैगजीन में निकाल रहा था विच वॉज एब्सोल्युटली प्रो पीपल्स पार्टी। ना कोई ऐड ना कुछ, लेकिन अच्छा एनीवे, अब वो लड़का उठ के कहे कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान जैसा करप्ट को करने वाली बात है, उसने कर दी। इल्जामात के अंबार हैं आप पे, और आप कह रहे हो कि मैंने तो कभी 1 रुपए की करप्शन नहीं की। कोई मानता नहीं। ये तो वो लोग हैं जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, रंगे हाथों। ये टीटियां मैंने भेजी हैं, और मुझे क्यों नहीं कभी कोई टीटी आई? ये अभी रिसेंटली, ये आजकल की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां वो उन्होंने फ्रीज कर दी, उसकी ओनरशिप या पता नहीं क्या है, को 2-3 सरदारी साहब की हैं, को मर्सिडीज ले गए अपना नवाज शरीफ को। तुम्हारे पेट ही नहीं भरते यार। डूब मरने को ये काफी नहीं है। अब डॉलर्स में खरपति हो, लेकिन क्या कर रहे हो? क्या औकात है एक मर्सिडीज की? जरदारी साहब को BMW हो, वो इनके नाम पे। बंदे में शर्म हया हो, को ग्रेस हो, इसी बात पे डूब मरे। बाइज्जत आदमी के लिए यही बहुत काफी है। वो शक्ल छुपाता फिरे कि यार किसी वीक मोमेंट में मैंने झक मारी है, वो माफी मांगेगा या छुपता फिरेगा। वो सरेआम परवाह ही कोई नहीं है। सो ये तो बहुत कुछ कहते हैं पॉलिटिशियन, हमारा जो कुछ कहता है। कभी सुना है किसी सियासतदान के मुंह से एक जुमला को क्या मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में तुमने तो ईस्ट पाकिस्तान भी वसी तर मफाद में बांग्लादेश बना दिया? तो छोड़ा क्या तुमने? खाने को रोटी नहीं थी, बैठने को छत नहीं थी, ऑफिसेज में ये कॉमन पिन्स वगैरह नहीं थी, कांटों से कागज जब पाकिस्तान बना था। ये ठीक है, मैं को गलत तो नहीं कह रहा। काफिले लुटे हुए थे, लोगों की औलादें ज़िबा हो गई, बेटियां पीछे रह गई, सब कुछ था। इस मुल्क पे कोई कर्जा नहीं था। हिंदुस्तान ने हमारे पैसे देने थे, उसका एक हिस्सा मिला, दूसरा हिस्सा मिलने पर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि ये पाकिस्तान का हक है, उसको दो। हम लेने वाले थे। लुटे पुटे भूखे नंगे उजड़े पुजड़े लोग आज किसका बच्चा है जो पैदा भी नहीं हुआ, वो भी लाखों का मकरूज है। अच्छा, इन्होंने कभी एक पाई की करप्शन नहीं की। ये सारे दूध के धुले नहीं, आबे जमजम के धुले हैं। ये बगैर परों के फरिश्ते हैं। मुल्क लुट गया, वो गिर भी पड़ा है। ठीक। बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ मकरूज है। और याद रखना, एक मुहावरा है अरबी जबान का कि
मकरूज ज़िबा किए हुए जानवर की तरह होता है। हुजूर का हुक्म है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले यानी भिक मंगे के भिखारी के हाथ से बेहतर होता है देने वाले का। हम कौन है लेने वाले? कल अमेरिका के हाथों की तरफ देख रहे थे, अब आप चाइनीज के हाथों को चूम रहे हो। क्या लोग हो? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।